Okay, Assalamu alaikum and good morning, good afternoon, everyone. Every time we had a lecture, we have a lecture in the morning session. So, so this is actually our practical session, but instead of the practical, we are taking the theory because in theory we are lacking. So I'm taking the theory session only. Okay. So we'll be covering few of the topics so that we can reach and we can cover the maximum syllabus as possible. Okay. Uh, First of all, let me know whether I am audible properly, clearly, or not. Please let me know whether my voice is clear, audible, or not. जिक्रा प्लीज लेट मी नो ऑडिबल प्रॉपरली ऑडिबल है. अब वो जो प्रॉब्लम हो रहा है एकदम आवाज़ कभी कम कभी ज़्यादा कभी आ रही है कभी नहीं, वो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ ही रहा है. अभी वो किस वजह से आ रहा है आई डोंट नो. Because right now I'm using earphone, that is mic of my mobile. ठीक है. So mic का मोबाइल काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो आई होप के थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे हो सकता है. चलो लेट इज leave the things. Now we'll start. I got two or three responses that this is clearly audible. Okay. So, in our previous topic, we have gone through these few basic concept of the base and limit register. We came to know that, and after that, logical and physical addresses and then swapping. Okay? So, these three concepts are basics and very basics for the later concept. Okay? So we have gone through the multi-programming, multiple processes coming for execution. When they are coming for execution, then it is our responsibility to fulfill the requirements with the memory space. Whatever memory they are requiring, we have to provide that much amount of memory. Okay, then only they will be able to execute. And after execution, they will leave. And when they will leave, they will release the memory and will get the memory. And then we can, and that particular memory can be given to any other. That memory can be given to any other process who are coming for execution and they are having bigger requirement. Okay. So let us start with the next topic, that is memory allocation scheme. This is very important question, may ask in examination about memory allocation strategies. Okay. So memory allocation strategy, memory allocation scheme, we have categorization also. So let us start with the uh, memory allocation scheme first. Okay. So first of all, just imagine that we are in the multi programming environment, because as I told you that in the uni programming environment, we don't have to worry about the memory. Okay. Because in uni programming, only one process will be there, one process going to process only one process. Okay. मतलब उसको खाली process करना है. So process साथ में आ गया. So वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं है. ठीक है. So we are going to focus and we are going to concentrate and we are concentrating on multi programming environment only. Okay. So in multi programming environment, you know that we are having multiple processes. Okay. So like we are having P1, we are having P2, we are having P3 up to Pn. So this is the multi programming. Whenever I talk about the multi programming environment, then just imagine that if we are having few processes like P1, P2, P3, up to Pn. Okay. So these processes will be coming for execution. Okay. Any number of process will come for execution. Maybe 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Many any number will come for execution. And when they will come for execution, that is your responsibility. This is your responsibility to assign memory location to those upcoming processes. Like this is your main memory. Okay. जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं, this is our operating system part. We used to say this is the kernel space. Okay. या kernel space बोलो या operating system resides in this particular memory. This is the main memory. ये आपका complete पूरा main memory, जिसमें से थोड़ा part आपके operating system ने लिया है और आपका ये जो part बचा है, this is the user space as usual. ठीक है. ये हम लोग कई दफ़ा repeat कर चुके हैं. Repetition and repetition makes the concept stronger. ठीक है. तो repeat होने दिया तो. So in user space, your process will come one by one, and they will come and they will execute. Okay. So where we have to allocate the memory, how we have to allocate the memory, how we have to allocate the memory. These are big question to ask. Okay. How we have to allocate the memory?
कैसे करना है, लाइन से करना है, जगह छोड़ छोड़ के करना है, कैसे करेंगे, दैट इज वन क्वेश्चन. हाउ how you are going to allocate the memory to these upcoming process like P1, P2 and P3. Imagine there are three process only. Okay, तो हम लोग ने बात की है Pn तक की. So right now in this scenario we are having only three process. Okay, so P1, P2, P3. So P1, P2, P2, P3. How we are going to allocate the memory for these three processes? आपने P1 को यहाँ पे लिया. Is it necessary to give the memory or to allocate the memory for P2 beside P1? P1 के बाजू में देना जरूरी है कि आप यहाँ पे भी दे सकते हो P2 को, P3 को आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है. तो कैसे देना है, दैट इज वन क्वेश्चन. सेकंड, how we are going to allocate the memory, ठीक है. How much memory we have to allocate, ठीक है, कितनी memory, ठीक है. So how much memory, so they are coming with the requirement also. So P1 will be coming with their own requirement, P2 will with own requirement, P3 with own requirement. So उसमें ज़्यादा हम लोग को टेंशन लेना नहीं, तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद में ये हो गया आपका. सो ये जो हमारे लिए क्वेश्चन है, सी आई हैव रिटन ओवर हियर इन माय वीडियो हाउ द मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू these upcoming processes. Okay, इनको हम कैसे देने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड. ओके, अभी हमारे लिए जब क्वेश्चन है तो इस यहाँ पर आपका आता है मेमोरी एलोकेशन स्कीम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स. ओके, सो लेट मी कैटेगराइज ओवर हियर. मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, तो पूरा लिख लेता हूँ मैं. memory management techniques. Okay, basically memory management techniques has been categorized into different domains. Okay, the first domain is a uni-programming environment and the second domain is multi-programming environment. Okay, पहले उसको हम लोग कुछ उसका पूरा ब्रॉड कैटेगराइजेशन करना है, तो इसके लिए हम लोग यूनि प्रोग्रामिंग को भी कंसिडर किए. हालांकि यूनि प्रोग्रामिंग को हम लोग कुछ नहीं करने वाले, बट स्टिल वी हैव मेंशन दैट वी हैव वन डोमेन दैट इज यूनि प्रोग्रामिंग. ठीक है, so this is uni programming and this is multi programming. ठीक है, so we have these two domain, one and two. थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको सही से दिखेंगे, यहाँ पर मैंने डायग्राम सही बनाया. ठीक है, so we have this uni programming and this we have multi programming. तो यूनि प्रोग्रामिंग की तो बात ही खत्म हो जाती है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को कोई मेमोरी को मैनेजमेंट करने की टेक्निक रिक्वायर्ड ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तो यूनि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, इन मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक we need some technique. In multi-programming environment, we need some technique so that we can allocate the memory to different upcoming processes. Okay, तो उनको करने के लिए, उनको allocate करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर टेक्निक चाहिए. ठीक है, अब वो टेक्निक हमारे पास कौन सी है. So multi-programming environment, that is the domain. Okay, in this we are having two technique. Okay, तो हमारे पास में दो टेक्निक्स है. The first technique is contiguous memory allocation scheme. Okay, see we are over here I have written contiguous allocation and non-contiguous allocation. ठीक है, जगह कम पड़ेंगी तो हम लोग पीछे लिख लेंगे, बट ये पूरा एक ही डायग्राम में आना चाहिए, इसके लिए मैं ट्राई करूँगा. So the first is contiguous. Someone can anyone explain me what is contiguous allocation and non-contiguous allocation? Contiguous allocation, non-contiguous allocation. काफी बार आपने नाम सुना होगा non-contiguous allocation. अरे सुने कि नहीं नाम? One after the other. Very good, Alfie. Contiguous allocation is the one in which if I say you have to sit in a contiguous manner. Okay, if you all the peoples are in in a classroom and you want to sit according to one pattern, then if I will ask you that you have to sit in the contiguous manner, then maybe according to the roll number you have to sit. Okay, so you will sit roll number 1, then 2, then 3, then bench wise आप बैठते जाओ. ठीक है, so contiguous manner is the manner is the pattern in which the allocation is done one after another. Simple, कोई ज़्यादा इसमें complexity नहीं. ठीक है,
सो कंटीजियस एलोकेशन इज द वन। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके रखता हूँ। डायग्राम जो कितनी तेरा जाना है तो प्रॉपर जम नहीं रहा। मैं इसको एक्चुअली मैं थोड़ा सा क्रॉस था, इसके लिए हो सकता है प्रॉब्लम है। So contiguous allocation में I'll draw the diagram over here and I will explain on the next page. ठीक है? So in the contiguous allocation, if this is your main memory, so maybe your process one will come and we will allocate the memory at this particular location. After that your P2 is coming. उसके बाद में अगर आपका P4 अगर आ रहा है तो P4 को उसके बाद में देंगे, ठीक है? उसके बाद में आपका P3, because this is not compulsory that all the process will come in a sequence only. P1, P2, P3, P4, P5 in the same, not compulsory. Okay, so if P4 is coming earlier, then your P4 will come, then P4 will come first after P2. ठीक है, उसके बाद में आपका P3 आया, ओके, उसके बाद में आपका समझ लो P5 आ गया। ठीक है, सो बस प्रॉब्लम मतलब कि कॉन्सेप्ट ये है इन कॉन्टिजियस एलोकेशन, जो भी प्रोसेस आएगा उसको पिछला प्रोसेस के बाजू में जगह दें, यानी कि कंटिन्यूअस मैनर में वन आफ्टर अनदर। सो एलोकेशन विल बी डन इन दिस मैनर। ठीक है, हमारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, देखो हाउ वी हैव टू एलोकेट, हाउ मच एलोकेट, वो सब सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इन नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन, in non-contiguous allocation, if the process P1 is allocated over here, if the system has allocated memory to process P1 at this particular location, then maybe it is not compulsory that P2 will be allocated over here only. उसके बाजू में ही P2 को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, maybe your P2 can get the memory at this location, your P3 will get the memory at this location. Okay, your P4 will get memory at this location and so on. So this is the non-contiguous. Just in order to understand, this is the non-contiguous allocation. This is non-contiguous allocation scheme. Okay. अभी इससे पहले कि हम लोग और आगे जाएं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। Memory management techniques we have. Okay. Why? Because we are having a lot of question like where, how and कैसे हम लोग करने वाले हैं। How we are going to allocate the memory in main memory, हम लोग कैसे memory को allocate करने वाले हैं for the different upcoming processes. Okay, so for that we are having different memory management techniques. Okay, so memory management technique can be implemented in two domains. Okay, one in the unit programming, we cannot implement this into the unit programming domain, because यहाँ पर domain में implement करके कुछ फायदा भी नहीं, बिकॉज ये एक ही प्रोसेस है तो जाहिर बात है आपका फौरन हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, when we talk about multi programming environment, then we are having number of processes who are coming for execution. As you can see, up to PM, they all are coming for execution, and this is our responsibility to allocate the memory in main memory. We have to allocate in main memory, we have to allocate the memory space to these upcoming processes. Okay, तो इनको करने की जिम्मेदारी हमारी। अब कैसे करना है? So we have for that we have two schemes. Okay, we have contiguous allocation scheme and we have non-contiguous allocation scheme. In contiguous allocation scheme, the processes will get the space, that is memory space, one after another. But in non-contiguous allocation, yeah, the process may or may not receive the memory space one after another. Maybe one is getting the space at the earlier, at the initial stage only, at the initial memory location only, and the remaining process, the upcoming process may get the memory at the end. Okay, so non-contiguous manner. Okay, so when you say non-contiguous, so it is self-explanatory. Okay, so non-contiguous kahin bhi ho sakta hai. Okay, and with the help of diagram we have seen. Okay, coming to the next slide. Okay, contiguous allocation को हम लोग को और जरा डिटेल में देखना है। So I will write over here contiguous allocation. Contiguous allocation. Okay, in contiguous allocation again we are having two categories. Okay, let me show you. In contiguous allocation we have multi-programming with fixed number of tasks. Okay, multi-programming with fixed number of tasks, which is also called as fixed partitioning scheme. ठीक है, और दूसरा जो है यानी कि contiguous के अंदर ही जो सेकंड है, the second is multi-programming with variable number of tasks. मीन्स हो सकता है कि यहाँ पर आपको पता है कि 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस में कम हुई है। ठीक है, तो 4 प्रोसेस आने वाला है यहाँ पर, तो फिक्स नंबर ऑफ टास्क हो गया। ओके, सो यहाँ पर फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम इसको हम लोग बोल सकते हैं।
In the second one, multi programming with variable number of tasks. दो प्रोसेस अभी है, हो सकता है कि दो अभी बाद में भी आ सकते हैं, तो दो बाद में आए, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क, वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क एमवीटी बोलते हैं इसको, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ टास्क, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स नंबर ऑफ टास्क। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ टास्क। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएफटी। ये एमएफटी आपको बुक में भी मिलेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। एंड द सेकंड वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। सो मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क, वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क, ठीक है। सो वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क, क्या लिखा था उसके मैंने, एमवीटी, multi programming with the variable number of tasks, MVT. Okay, so again this is the two category, okay, that is MFT and MVT. Okay, and they are also called as fixed partitioning scheme, fixed partitioning scheme, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखना। एंड दिस इज वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम, सही है, ओके, दिस इज वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम, ओके। अब इसमें एक्चुअल होने क्या वाला है जो आप लोग समझेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जस्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करते चलो, समझते चलो, और आगे चल के आप लोग स्टडी आराम से करो, ठीक है। So in contiguous allocation scheme, that was the first category we have seen in the multi-programming. In contiguous allocation, the processes will be allocated one after another. Okay, and in contiguous allocation, we have multi-programming with fixed number of tasks, where the upcoming number of tasks, the processes are fixed. Okay, वहाँ पर allocation भी fix होगा, ठीक है, और यहाँ पर allocation variable रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा। चलो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका यूनिट प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, कॉन्टिजियस का देख लिया हम लोग ने। अभी नॉन कॉन्टिजियस का देखना है, ठीक है। सो नॉन कॉन्टिजियस का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। In non-contiguous allocation, we are going to learn two concepts, two major concepts, two main concepts. Okay, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। The one is paging and the second is segmentation. And I think ये वाला concept आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है पहले, COA में शायद आप लोगों ने पढ़ा। कोई बताएगा मुझे कहाँ पर पढ़ा है आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट? DLDA में तो नहीं हुआ रहेगा, ये COA में हुआ रहेगा शायद, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। मे बी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज बीन चेंज क्वाइट, थोड़ा सा कुछ हुआ है, but these are the two concepts which are important, which comes under the non-contiguous allocation scheme. Okay, so we will be learning these two concepts, that is paging and segmentation. Okay, and in contiguous allocation scheme, we are going to learn fixed partitioning scheme and we are going to learn variable partitioning scheme. Okay, so यहाँ तक सब क्लियर है? Someone please respond. अभी तक ये भी किसी ने बताया नहीं कहाँ पढ़े पहले, सब सोते पड़े लगता है। बताओ जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है। यस सर। पॉज लेना जरूरी है एक्चुअली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Coming to the next one, that is multi-programming with fixed number of tasks, that is fixed partitioning scheme. Okay, so multi-programming with fixed number of tasks. Okay, MFT, which is also called as fixed partitioning scheme. मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हूँ। It is also called static partitioning. It is also called as fixed partitioning. Fixed partitioning. फिक्स पार्टीशनिंग क्यों बोलते हैं, स्टैटिक पार्टीशनिंग क्यों बोलते हैं, आई विल लेट यू। फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम, ठीक है, तो पूरा लिख लेते हैं, फिक्स पार्टीशनिंग।
So MFT, that is multi-programming with fixed number of tasks, or also called as fixed partitioning scheme, and also called as static partitioning scheme. Okay, here what we are going to see. Okay, the very first thing what we have to do is that we have to divide the memory into fixed size partition. We have to divide the memory into fixed size partition. So the very first one, divide memory into fixed size partition. तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम. कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूँ. फिक्स्ड partition. Okay, so this is your main memory. सी ओवर ईयर मैंने आपको बताया हूँ. सो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा कर्नल स्पेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड होल दिस इज योर मेन मेमोरी. सो होल मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स पार्टीशन. ठीक है, तो अब आपका ये यूजर स्पेस बचा, सो दैट यूजर स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन. सो हियर यू कैन सी द पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3. तो यहाँ पर आपका फिक्स साइज पार्टीशन है. फिक्स साइज पार्टीशन इंपॉर्टेंट है. फिक्स्ड पार्टीशन, फिक्स साइज पार्टीशन इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर मैंने 3 डिवाइड किया. अगर थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप समझ के ले लो. सो दिस इज माय पार्टीशन नंबर 1. दिस इज सॉरी, मैं P1 नहीं लिख सकता क्योंकि P1 हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस 1 के लिए. ठीक है, तो इसके लिए इसको कुछ और नाम लिखना पड़ेगा. आई एम यूजिंग पार्ट. ओके, सो पार्टीशन 1, this is partition 2, and this is partition 3. Okay, so I have divided my user space into 3 equal amount of fixed partition. This is partition 1, this is partition 2, and partition 3. Okay, मुझे और भी यहाँ पे काम है, इसके लिए मैं इसको रब कर. उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिफरेंट साइजेस के आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट साइजेस के मतलब उसके अंदर आपके प्रोसेसेस आ सकते हैं. डिफरेंट साइजेस के प्रोसेस आएंगे तो आप उसको वहां पर प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका जो स्पेस है और ये स्पेस मे बी डिफरेंट हो. ठीक है, ये आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये मतलब कहने का पर्पज ये है, आप लोग शायद, आप लोग ने भी शायद रॉन्ग इसको इंटरप्रेट किया होगा. मैं शायद, मेरा बोलने का वे ऐसा था. आपका ये जो पार्टीशन 1 है, ये पार्टीशन 1 हो सकता है आपका एक्स साइज का. ठीक है, पार्टीशन 2 है, ये आपका वाई साइज का है. दीज आर नॉट ऑफ सेम साइज. ओके, एंड द पार्टीशन 3 इज ऑफ जेड साइज. ओके, वाई वी आर हैविंग डिफरेंट साइज ऑफ पार्टीशन. आप बोलेंगे सर आपने तो बोले फिर आपने तो बोले फिक्स पार्टीशन करना है. फिक्स साइज करना है, फिक्स साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टीशन. पहला पार्टीशन बनाया तो फिक्स साइज का, इन्हें उसको मैं आगे चल के चेंज नहीं कर सकता हूँ. देखो, here I've written, once the partition is created, we cannot change the size of the partition. Once it is created, can't change. ठीक है, can't change. और सेकंड वाला पॉइंट मैंने लिखा था डिफरेंट साइजेस. अब ये डिफरेंट साइज का क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ. डिफरेंट साइज का इसके लिए है, फॉर एग्जांपल फॉर पार्टीशन 1 आई हैव मेड वन क्यू, फॉर पार्टीशन 2 दिस इज सेकंड क्यू, एंड फॉर पार्टीशन 3 दिस इज थर्ड क्यू. सो Q1, Q2, Q3, and we have spaces in this particular queues. Okay, so 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने भी आपको क्यूज बनाना है उसके अंदर प्लेसेस बनाने. ठीक है, ओके. अगर आपके पास में कोई प्रोसेस आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास में प्रोसेस P1 आता है, उसकी जो साइज है इट इज नियर अबाउट एक्स साइज. ठीक है, सो कहां पर भेजेंगे हम लोग, वी विल सेंड योर P1 टू द Q1. ओके, if the process 2 will come with the size near about Z. okay, उसकी जो साइज है, उसका जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, इट इज नियर अबाउट दिस Z साइज. ओके, so we'll send P2 to the Q3 instead of sending to Q2 और Q1. ठीक है, ये इसीलिए हम लोगों ने फिक्स साइज का डिफरेंट अलग अलग हम लोगों ने पार्टीशन बनाए. ठीक है, सो फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम में क्या होता है, सबसे पहला काम, वी हैव डिवाइडेड द मेन मेमोरी के अंदर जो यूजर स्पेस है, दैट यूजर स्पेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड पार्टीशन. फिक्स पार्टीशन इट मीन दैट वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज इट. ओके, आगे चल के जो हमारा वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम है, वहां पर हमारे पास प्रोविजन है दैट वी कैन चेंज द पार्टीशन आल्सो. बट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट इज MFT, that is in the static partitioning scheme, we cannot change the size. We cannot change the size of the partition once it
it is created, we cannot change. Okay, and these partitions are of different sizes. Okay, तो इतनी तीन चीजें. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Okay. In multi-programming with fixed number of tasks or fixed number of tasks यहाँ पे लिखे थे हम लोग ने, which is also called as fixed partitioning scheme. इसके अंदर we have two alternatives. Okay, remember यहाँ पर भी देखो और अंदर जा रहे हैं, hierarchy follow करना, hierarchy maintain करना, ठीक है? तो we have two alternatives over here. Okay, अब कौन कौन से alternatives हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो. ठीक, चलो आई थिंक अब थोड़ा सा और क्लियर होगा, मतलब मुझे लिखने में थोड़ा सा. So we have two alternatives in the fixed partitioning scheme. Alternatives, आज राइटिंग बहुत ही बढ़िया जा रही है, अलग ही मतलब कुछ जा रही है. So we have two alternatives in the fixed partitioning scheme. Okay, अब fixed partitioning scheme में हमारे पास में जो दो alternatives है, एक तो है equal size partitioning और दूसरा है unequal size partitioning. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ, one is equal size partitioning, equal size partitioning, and the second is unequal size partitioning. Okay, so we have equal size partitioning and unequal size partitioning. अब equal size में क्या होने वाला है, आपको समझ जाओ, जहां पर हमारे सारे के सारे partition equal sizes के रहेंगे. That is very very simple. And in unequal size partition, we will be having are all the partition of the different sizes as we have mentioned in the earlier. Okay, as we have mentioned earlier कि हमारे यहाँ पर different sizes के partition होंगे और हमारे equal size, मतलब वहां पर हम लोगों ने खाली एक ही के बारे में सोचा था, बट हमारे पास में दोनों ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं. पहले मैंने एक ही बताया, लेकिन हमारे पास दोनों ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं. ठीक है, तो we have two alternatives. We can have two alternatives in the fixed partitioning scheme. One is equal size partition, second is unequal size partition. अब चलो एग्जांपल आपका फर्स्ट वाला लेते हैं, इक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम. तो ये रहा आपका इक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम. दिस इज आवर मेन मेमोरी. चलो वापस से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं. सो इन इक्वल साइज पार्टीशनिंग ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, अब ये जो बचा हमारा यूजर स्पेस, तो इस यूजर स्पेस के अंदर वी आर गोइंग टू partition all the we are going to partition the main memory, that is the user space, into the equal amount of partition. ठीक है, इक्वल अमाउंट पे करने वाले. फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 है, 4 इसके लिए बोल रहा हूँ कि पार्टीशन करने में आसान है. ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं. सो सपोज आई एम हैविंग 4 पार्टीशन, आई एम हैविंग 4 पार्टीशन. मैं एक्चुअली बस सोच समझ के बना रहा हूँ, वरना कोई सोचेगा कि सर ये छोटा ही बड़ा. ठीक है, so these are partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. ठीक है, एंड सबकी साइजेस भी मैंने देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हूँ, 8 KB 8 KB 8 KB, सबको मैंने 8 KB दिया. ठीक है, सो चलो ये दे दिया मैंने 8. अब वो KB हो MB हो वो हमारा लुकआउट नहीं है, या हम लोग खाली साइज दे रहे हैं. ठीक है, तो चलो 8 KB दिया है इसको भी, 8 KB 8 KB और 8 KB. Okay, so in equal size partitioning what we are doing, we are dividing the user space of main memory, we are dividing the user space, this is my user space. Okay, we are dividing our user space into equal amount. Okay, तो equal size partitioning करना है. तो यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल 32 KB हमारा अवेलेबल था मेन मेमोरी, तो हमने इसको डिवाइड किया 8 KB 8 KB. ठीक है, सब डिवाइड. अच्छा, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल हम लोग वो देखते हैं. सो इमेजिन करो हमारे पास में एक प्रोसेस P1 आया. ठीक है, सो प्रोसेस P1 कम्स. ओके, एंड प्रोसेस P1 रिक्वायर ओनली 2 KB ऑफ मेमोरी. ओके, योर प्रोसेस 1 कम्स एंड इट रिक्वायर्स ओनली 2 KB ऑफ मेमोरी. तो भाई साहब हमारे आए और हमने उनको हम कहाँ पे, अगर ये हमारा कॉन्टिजियस एलोकेशन है तो एक के बाद में एक एलोकेशन होता है, बिकॉज वी आर इन द कॉन्टिजियस एलोकेशन. तो चलो हम लोगों ने दे दिए प्रोसेस 1 को यहाँ पे जगह. ठीक है, तो 8 में से 2 गए, मतलब इतना 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 दे दिया जगह. ठीक है,
तो आपका प्रोसेस 1 भाई साहब आ गए, इनको 2 KB जगह चाहिए थी, तो हम लोगों ने इनको 2 KB की जगह दे दी, 2 KB। ओके, अब यहाँ पर कितना बाकी है बताओ जरा मुझे। 8 KB में से आपने 2 KB प्रोसेस 1 को अलॉट कर दी। हाउ मच मेमोरी इज रिमेनिंग राइट नाउ? ऑब्वियसली 6 KB इज स्टिल रिमेनिंग, ठीक है। अभी जो 6 KB हमारा बाकी है यहाँ पर, ये जो 6 KB हमारा बाकी है, इस मेमोरी का जो हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारी वेस्ट हो रही है मेमोरी, और ये जो जो हम लोग मेमोरी, अच्छा चलो इमेजिन कर लो आप थोड़ा सा, अगर सोचेंगे कि अगर हमारे पास में वेरिएबल का अगर पार्टीशनिंग स्कीम होती या कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता इन दैट वी कैन असाइन द मेमोरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑन, या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस, वी कैन मेक द पार्टीशन। अगर ऐसा होता तो सोचो कितना अच्छा होता, हमारी बाकी की मेमोरी भी बचती। ओके, चलो हमारे पास में अभी दूसरा एक प्रोसेस आया, हमारे पास में प्रोसेस आया प्रोसेस 2। ओके, तो प्रोसेस 2 इज रिक्वायर्ड अराउंड 7 KB ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो अब 7 KB ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो भाई साहब उसको हम लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अरे बोलो, यहाँ पे फिट कर सकते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे फिट? तो कहाँ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द सेकंड पार्टीशन। तो पार्टीशन 1, दिस इज पार्टीशन 2। ओके, तो वी हैव टू यूज द सेकंड पार्टीशन, और इसके अंदर 7 KB यहाँ तक यूज हुआ है। तो ये आपका प्रोसेस 2 आया, 7 KB यूज किया, एंड 1 KB फिर क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया। अगर कोई प्रोसेस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप तो आगे बढ़ ही चुके हैं। ये जो मेमोरी हमारी यहाँ पर वेस्ट होती है, दिस वेस्टेज इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वाइवा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन वाइवा क्वेश्चन। मोस्ट आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ पर होता है, बेसिकली इट हैपेंस इन फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम। फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम के अंदर वी आर हैविंग टू ऑल्टरनेटिव, दैट इज इक्वल पार्टीशनिंग एंड अनइक्वल पार्टीशनिंग स्कीम। तो इक्वल पार्टीशनिंग के अंदर व्हेन वी डिवाइड द यूजर स्पेस इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसेस, इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टीशन, so at that time if we allocate some amount of memory to any upcoming process, then the remaining memory is getting wasted. Okay, and this wastage is nothing but the internal fragmentation. Okay, तो ये हमारा इक्वल साइज पार्टीशनिंग का है। यहाँ पर देखो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके बताया। नाउ लेट अस कम टू द अनइक्वल साइज पार्टीशन, ठीक है। इन अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग, चलो उसको मैं दूसरे इस पे दिखाता हूँ। अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम, ठीक है। अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम्स कम्स अंडर कॉन्टिजियस एलोकेशन। कॉन्टिजियस एलोकेशन के अंदर fixed number of fixed number of tasks, okay, MFT, that is called static partitioning also, okay, also called as fixed partitioning scheme। इसके अंदर इक्वल एंड नॉन इक्वल, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं अनइक्वल पार्टीशनिंग स्कीम। चलो वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में से इतनी जगह हम लोगों ने दे दी है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये बचा हमारा यूजर स्पेस, ठीक है। मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये चीजें समझ में आ जाए कि जो रिमेनिंग स्पेस है दैट इज द यूजर स्पेस, एंड दिस इज द कर्नल स्पेस वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड, कर्नल स्पेस। ओके, so in user space what we are going to design, what we are going to do according to the unequal size partitioning, we are going to make the partition of the main memory, we are going to make the partition all of unequal sizes, all of unequal sizes, like here what I have make। so यहाँ पर मैंने पहला पार्टीशन बनाया, वो बनाया मैंने 2 KB का। इसके इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक आप लोग समझ भी गए और मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने सेकंड पार्टीशन बनाया 4 KB का, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर रहा हूँ मैं, आप लोग समझ के लेंगे। और एक पार्टीशन बनाया यहाँ पर 6 KB का, और एक पार्टीशन बनाया 8 KB का, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल आपको दिख रहा होगा, बट ऑल आर ऑफ इक्वल, ऑल आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इन द अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग, in unequal size partitioning scheme I have divided the user space into 4 partition, not necessarily 4, this is up to you only, okay। so मैंने क्या किया, हर partition को अलग अलग साइज का बनाया, 2 KB, 4 KB, 6 KB, 8 KB। the logic behind making this partition of different sizes is that
when I'll be having any process of 2 kb या 1 kb, then I can occupy, I can fit that particular process into the first partition. ठीक है, ये मेरा partition 1, partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. इमेजिन करो मेरे पास में एक प्रोसेस P1 आया, प्रोसेस 1 comes with the 2 kb of रिक्वायरमेंट मेमोरी स्पेस. ठीक है, आप P1 को अगर आप फोर्थ पार्टीशन में अगर एडजस्ट करते हैं, if you adjust this process P1 into the partition number 4, then ये तो बेवकूफी होंगी, बिकॉज हम उससे हमारा क्या होगा, 6 kb हमारा वेस्ट हो जाएगा, अगेन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to reduce the internal fragmentation, and for that we have made this arrangement. Okay, तो P1 भाई साहब आए, हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया, तो आपका प्रोसेस 1 यहाँ पर अरेंज हो गया, बिकॉज 2 kb का हमारे पास में ऑलरेडी. चलो अब आए प्रोसेस 2 भैया, प्रोसेस 2 कम्स विद द 3 kb, प्रोसेस 2 कम्स विद द 3 kb. ओके, अब 3 kb को हम लोग पार्टीशन नंबर 3, 4 में तो डाल नहीं सकते, कहाँ डालेंगे, प्रोसेस 2 में, सॉरी पार्टीशन 2 में डालना पड़ेगा. ठीक है, so when we put this particular process into the partition number 2, then even हमारा 1 kb वेस्ट होगा, उतना बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पर डालेंगे तो 3 kb वेस्ट होगा, यहाँ पर डालेंगे तो कितना 5 kb वेस्ट होगा. सो ज्यादा वेस्ट करने, ज्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होने के बजाय आप क्या चाहेंगे, यू विल हैव, यू वांट टू रिड्यूस द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो बेटर होगा कि हम लोग P2 को यहाँ पर डालें, दैट इज 3 kb, और यहाँ पर भी हमारा 1 kb बचता है. ठीक है, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. अब आपका P3 एक आया, P3 कम्स विद द 7 kb ऑफ. ठीक है, अब 7 kb के रिक्वायरमेंट से अगर आता है, देन कहाँ पर आप इसको फिट करोगे बोलो. You have partition number 3 also, partition number 4 also, but you cannot fit process 3 into the partition number 3. Okay, because ये इसमें 6 kb का है, उसको हमको यहाँ फिट करना पड़ेगा. ठीक है, स्टिल यहाँ पर 1 kb आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में चला जाएगा. लेट मी राइट ओवर हियर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, सो मेरा P3 यहाँ पर एडजस्ट हो गया भाई साहब 7 kb. अब आप बोलोगे सर अभी एक और प्रोसेस, हालांकि मैंने यहाँ कुछ बताया नहीं, आप लोग बोलेंगे सर एक और प्रोसेस आया विथ 15 kb, विथ 15 kb अगर आया तो क्या करेंगे, नहीं कर सकते भाई, हमारे पास में हमारी उतनी जगह ही नहीं है उसको मतलब के मेमोरी देने के लिए, वी कैन नॉट एग्जीक्यूट, खत्म करो बात. ठीक है, वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट आल्सो. ठीक है, तो आगे मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज, आगे चल के इसमें 2-3 स्ट्रेटजीज है, तो वो आप लोग जब पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, बहुत सिंपल. ठीक है, so contiguous allocation, in that we have multi programming with fixed number of tasks, that is static programming, sorry static partitioning, and also called as fixed, क्या बोलते हैं इसको, fixed partitioning scheme. Okay, the second one is a variable number of partitioning scheme, that is variable partitioning scheme, also called as variable number of tasks, MVT. We are not going to start that particular topic today only, but इतना ही हम लोग करके आज रुकेंगे. So in this particular one, that is fixed partitioning scheme, we have equal, we can have two alternatives. One is the equal size partitioning scheme, and second one is unequal size partitioning. ठीक है, for equal size partitioning we have seen this example, for unequal size partitioning scheme we have seen this. Okay, I hope यहाँ तक आपको clear है, ज्यादा भागना मैं भी नहीं चाहता. ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिक्स वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टीशनिंग, वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क, दैट इज एमवीटी, आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम. ठीक है, उसमें भी आप लोग को मजा आएगा, और उसके बाद में फिर हम लोग स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे. ठीक है,